हमने कल जो कर रहे थे उसी को हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। या ओके। हेलो, आपने म्यूट कर रखा है आई थिंक। हाँ, यस 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 सर। हाँ ओके, तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। कल हमने जो बात की थी वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर पे कर रहे थे, बिकॉज स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हम कर चुके थे। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड हमने देखा था, इट्स 3R, है ना? हाँ 3R। आज हम करेंगे जरा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। ठीक है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। सो वाटर में जो अपना हम बात करेंगे, तो फॉर single atom of water, it has 3 modes of vibration. So as you know, one mode of vibration के लिए आपका कितना एनर्जी होता है? It's kBT. So for 3 modes of vibration, it has the kBT, energy 3 kBT. 3 kBT. 3 kBT for your 3 modes of vibration. ठीक है? And a single molecule of water, a single molecule of water have कितने एटम होते हैं? Single molecule of water have 3 atoms, H2O, 2 hydrogen 3 atoms. और एक ऑक्सीजन। हाँ 3 atoms. So the internal energy, or you can say the energy, for this case your average vibration energy, you can say that the average vibration energy, vibrational energy. So it's 3 into 3 and 9 kBT. ठीक है, it's 9 kBT. Okay, so the internal energy of total gas molecule of total molecule of water, internal energy of total हाँ molecule of water is 9 into, हम इसको Na से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, so it's 9 Na, it's kg. Okay, so this is your internal energy. So now what's your specific heat? Specific heat is your C is your du upon dt. So in this case, the specific heat for the case of water is 9 into Na into kb, which is your nothing but 9R. ठीक है, 9R. So this amount of specific heat a water have. Okay. हाँ तो हाँ, तो इसमें मतलब हम सिंगल एटम ऑफ वाटर में मतलब हम एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन वैसे ले रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, सिंगल एटम। ठीक है, सिंगल एटम का जो वाइब्रेशनल एनर्जी है दैट इज 3 kBT, एंड 3 एटम्स की वजह से इट्स 9 kBT, एंड द स्पेसिफिक हीट इज 9R. ओके, नाउ अब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का थोड़ा सा देखा है, अब हम करेंगे मीन फ्री पाथ, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मीन फ्री पाथ। देन आपका ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ, तो अब हम मीन फ्री पाथ कर रहे हैं। या मीन फ्री पाथ। ओके, तो मीन फ्री पाथ आपका ये है कि जैसे कि आपका जो मॉलिक्यूल है, आपका गैस मॉलिक्यूल, दैट फ्रीली मूव्स, यानी विदाउट एनी कोलिजन, जो वो डिस्टेंस कवर करेगा विदाउट एनी कोलिजन। अब ये गैस मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें आपको पता है देयर इज अ रैंडम मोशन इन ए गैस कंटेनर। तो एक मॉलिक्यूल आपका गया और ये कुछ डिस्टेंस में मूव किया, और फिर अनदर पार्टिकल से ये क्या कोलाइड करके फिर टकरा गया। इसका आपका डायरेक्शन बदल जाएगा, और फिर ये
आपका फिर ये इस डायरेक्शन में गया, फिर मान लीजिए ये टकरा के फिर इस डायरेक्शन में गया, तो ये डायरेक्शन गया, फिर ये डायरेक्शन गया। तो दीज आर एक्चुअली मीन फ्री पाथ, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक जाने का मीन फ्री पाथ हो गया, दैट इज लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 4 5, 5 लैम्डा 6। तो 6, तो मतलब हम लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 4 लैम्डा 4 प्लस प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाय total 6. number of collision, exactly, total number of collision, so that will give you the mean free path. Okay, so the definition of mean free path is the mean free path of a gas molecule, the mean free path, the mean free path of a gas molecule, of a gas molecule may be defined as may be defined as the average distance, the average distance traveled by a molecule, traveled by a molecule between two successive collisions, between two successive collisions. ठीक है, so the mean free path is defined as your algebraically it's lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 plus lambda 4 up to collisions जितने भी हो रहे हैं उनका mean free path का sum divided by the total number of collisions. Okay, so this is your the expression for your okay. So the ये जो आपका the in order to derive the complete expression of mean free path, we have considered some some hypothetical या imaginary spheres, some imaginary cylinder, not exactly हाँ. Okay, so to derive the complete derivation या complete expression जो होगा इसका, है ना, वो जरा हम देखेंगे कि कितना इसका mean free path होगा in terms of your total number of particle, है ना, and cross sectional area के terms में इसका path आएगा. So now next part is our expression for mean free path, जरा हम देखेंगे how to express this mean free path. ये तो इसका definition हो गया, okay. So now for this we consider a sphere. तो मैं एक sphere draw कर लेता हूँ, जरा एक मिनट. Suppose I first of all I am taking a particle. Suppose this is a particle. Okay. तो ये हो गया हमारा particle. So now I am taking another particle, but उससे पहले मैं जरा यहाँ पे थोड़ा सा ये एक स्केच बना लेता हूँ. ये आपका एक पार्टिकल है. आई एम नाउ आई एम ड्राइंग अनदर पार्टिकल. वो कुछ इस तरीके से या एंड समवेयर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ओके, so these are basically two another particles, और इन दोनों के बेसिस पे हम एक इमेजरी स्फीयर ड्रॉ करेंगे. वो कुछ इस तरीके से होगा. वेट करें जरा, ये टाइम ले रहा है. एक सेकेंड.
एक मिनट वेट करें जरा जमाल, ये थोड़ा सा जी ये जी एक मिनट मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा था। यप ओके, तो वापस से ड्रॉ करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा थोड़ा फास्ट ड्रॉ करते हैं। या तो एक पार्टी के लिए बनाया था हमने, और एक पार्टिकल हम बना रहे हैं समवेयर हियर, यहाँ कहीं पे बना देते हैं एक फटाफट। एक पार्टिकल ये है और समवेयर यहाँ पे एक पार्टिकल ये है। ओके, तो यहाँ पे एक इमेजरी स्फीयर बना लेते हैं सिलेंडर। ये कुछ मैं इसका डिस्टेंस या, और ये आपका होके जा रहा है, दिस इज समवेयर एग्जैक्टली डिस्टेंस होके जा रहा है। इज अवर इमेजरी सिलेंडर। ये जो that is from its center and the radius of this sphere is small d. ओके, और ये जो पार्टिकल है आपका, दिस पार्टिकल इज ए, ये पार्टिकल हम इसको ए ले लेते हैं। ओके, एंड द डिस्टेंस, द डायमीटर ऑफ दिस पार्टिकल इज योर, ठीक है, तो ये आपका डायमीटर डी है और इसका रेडियस आपका डी है। ये हम क्यों ऐसा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, ये अभी मैं बात करता हूँ। तो देखो, इसको डेराइव करने से पहले हम इसमें एजम्पशन ले लेते हैं, दो एजम्पशन। कि आपका जो फर्स्ट एजम्पशन इज दिस, that each molecule of a gas is a sphere of diameter d. Each molecule is the sphere of diameter. ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड थिंग इज दिस कि भाई आपका जो A is your moving with velocity v, particle A is moving with velocity v, velocity v, ठीक है, और अदर पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बाकी जो दो पार्टिकल्स हैं हम उन्हें रेस्ट में ले रहे हैं। हमने एक सिलेंडर एक एज्यूम किया, इस सिलेंडर के मान लीजिए इसमें 3 पार्टिकल है, वैसे और भी हो सकते हैं, टोटल आपके पार्टिकल ज्यादा हो सकते हैं। तो हमने रेफरेंस का एक पार्टिकल लिया और हमने ये लिस्ट माना कि देखो ये पार्टिकल आपका ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके बीच में, इसके डायमीटर के बीच में जो भी पार्टिकल आएगा उससे कोलाइड कर देगा। यानी जितना ये डिस्टेंस विदाउट कोलाइडिंग मूव करेगा, दैट डिफाइंस इट्स फ्री पाथ। मान लीजिए इस कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, 3, तो इसका इनसे कोलाइड करने का जो चांस होगा, दैट इज ड्यू टू दिस पार्टिकल इज योर 3। तो वो हम जरा देखेंगे कैसे उसको मीन फ्री पाथ के एक्सप्रेशन में इसको डिफाइन करें। ये आपको डायग्राम समझ में आ गया ना। तो मान लो अगर ये पार्टिकल का वेलोसिटी v है, तो इन स्मॉल टाइम डेल्टा t इट विल स्वैप द डिस्टेंस डेल्टा t। Is it clear? Hello? If the hello Jamal, आ रहे हैं? हाँ, if a particle has the velocity v, then in small time delta t, it swipe the distance v into delta t. Is it clear? हाँ, यस। हाँ, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो द नंबर ऑफ कोलिजन, एक मिनट हम, यस सर। तो नंबर ऑफ कोलिजन, ठीक है, नंबर ऑफ कोलिजन suffered by molecule A, suffered by molecule
A, molecule A, ठीक है, is your in time delta T is equal to, in time delta T equal to, तो ये हो गया आपका जो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर बाय पार्टिकल ए, यानी जितना आपका ये पार्टिकल ए आपका स्वेप करेगा, है ना, एंड इनटू मल्टीप्लाई विथ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये बताते ना, ये आप इतनी कोलिजन हो गया, obvious सी बात है, जितना इसका वॉल्यूम है और जितना इस पे पार्टिकल है ना, क्योंकि ये इस वॉल्यूम के अंदर है ना, so this can also be written as volume of the cylinder इन ये क्या लिखा है, number of collisions suffered by molecule A suffered by in molecule A in time delta T is equal to volume of the cylinder, volume of cylinder swept by molecule A in time delta T, molecule A in time delta T multiply with total number of molecules per unit volume into n। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नंबर ऑफ कोलिजन molecule A, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कोलिजन सफर्ड बाय मॉलिक्यूल ए इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर स्वेप्ट बाय मॉलिक्यूल ए इन टाइम डेल्टा टी इनटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम विच इज स्मॉल है, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर स्वेप्ट बाय मॉलिक्यूल ए। तो देखो इसका जो वॉल्यूम होगा दैट हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज कैपिटल ए, इट हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया व्हिच इज कैपिटल ए, है ना। कैपिटल ए की वजह हम इसको पाई डी स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, पाई डी स्क्वायर, ओके। एंड ये इस सिलेंडर का वॉल्यूम लिखा है हमने, सिलेंडर हमें इमेजरी बनाया है डॉटेड लाइन से, and into the volume of area हो गया इसका, and the volume is defined as pi d square into v into delta t, that will be the volume, okay, and multiply कर दें, so that will define the number of collision। ये क्या हो गया जी, इतने आपके number of collision होंगे, number of collision, ठीक है, these are total number of collision, ठीक है। अब तो बस बात तब तो यहाँ पे समझ में आ गई, यहीं तक तो थोड़ी प्रॉब्लम थी। नंबर ऑफ कोलिजन अगर एक बार हमने निकाल लिए तो मीन फ्री पाथ का हमने पहले फॉर्मूला क्या लिखा था, द एवरेज डिस्टेंस जो वो कवर करेगा डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, है ना। तो जो आपका लैम्डा जो आपका बार विच इज मीन फ्री पाथ इज योर जो ये जितना ही डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर इन टाइम डेल्टा टी, cover in time delta t divided by the number of collision in time delta t, number of collision in time delta t, ओके। तो देखें अब डिस्टेंस डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जमाल कितना डिस्टेंस कवर करेगा डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा टी में टाइम में v डेल्टा टी, v डेल्टा टी एग्जैक्टली, तो इट्स v डेल्टा टी and divide by number of collision in time delta t, that is pi d square into v delta t into n। तो ये डेल्टा डेल्टा v डेल्टा t आपका रिमूव हो गया, सो द एवरेज जो आपका मीन फ्री पाथ है दैट इज योर 1 अपॉन पाई डी स्क्वायर इनटू n, यानी पाई डी स्क्वायर ये आपका जितना सिलेंडर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मल्टीप्लाई विद टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज योर mean free path is equals to 1 upon pi d square into n, ठीक है। मीन फ्री पाथ का ये एक्सप्रेशन आ गया, ओके। ये तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस टोटल नंबर ऑफ कोलिजन निकाले और उसको टोटल डिस्टेंस कवर से हमने टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से डिवाइड कर दिया, तो एक जनरल एक्सप्रेशन मिल गया हमें, जनरल एक्सप्रेशन फॉर मीन फ्री। तो ये हो गया आपका मीन फ्री पाथ का। अब यहाँ पे ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया है, इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं आज, है ना, और फिर कल से हम जरा अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, या देखते हैं अगर आज टाइम मिला तो आज ही थोड़ा सा स्टार्ट कर देंगे ऑसिलेशंस, ठीक है। ठीक है। ऑसिलेशन इज नॉट ए बिग चैप्टर,
हम देखो वीकेंड पे कोशिश करेंगे, कल मैं आपकी क्लास रखूंगा, है ना। हाँ हाँ हमारी क्लास इधर भी थोड़ी कम हो गई है और आपका सिलेबस थोड़ा कवर करना है, तो कल किस टाइम रखें, मॉर्निंग में रखें या इवनिंग में रखें? मॉर्निंग में हाँ हाँ सोचिए, मगर मॉर्निंग में रखना चाहे तो मॉर्निंग में रख सकते हैं, वरना आप मॉर्निंग इवनिंग में में अगर 8 o'clock मेरी क्लास हो सकती है स्कूल अच्छा की। 8 अच्छा हो अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तो फिर इवनिंग में ही करते हैं, ठीक है। ठीक है, या तो फिर 8 बजे हाँ 8 से रहेगी। हाँ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि एक मतलब एक फिजिक्स की एक एक्स्ट्रा क्लास वो टीचर रखना चाहते थे। चलो ठीक है, हम इवनिंग में इसी टाइम कर लेंगे 6 to 7, ठीक है। ठीक है, कल क्लास कर लेंगे एक और फिर संडे को भी मैं क्लास अरेंज करूंगा, so that we can cover our syllabus, है ना। तो वो थ्योरेटिकल कम है, अगला चैप्टर ऑसिलेशंस वो थोड़ा मतलब उसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ओके, नॉट टुक मोर टाइम, क्योंकि वो थोड़ा मैथमेटिक्स बेस ज्यादा है ना, साइन कॉस का फंक्शन था उसमें, वेरिएशन हाँ समझा, हाँ, तो वो इतना टाइम नहीं लेगा, तो इस पे हम जरा उसमें एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो सब है। हाँ एग्जैक्टली उसमें जरा आपको ऑसिलेशंस दिखाने हैं, उन ऑसिलेशंस को दिखाने के लिए, पीरियोडिक मोशंस के लिए वी रिक्वायर्ड सम साइन एंड कॉस फंक्शन, है ना। हाँ, ए साइन ओमेगा टी। हाँ तो हम जरा एक कुछ इसमें न्यूमेरिकल एक है, एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये ट्राई करके देखते हैं, तो आपका थोड़ा आइडिया लगेगा कैसे प्रॉब्लम आते हैं। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ, कैलकुलेट द क्वेश्चन इज कैलकुलेट the root mean square speed of स्क्वायर speed स्पीड of smoke particles smoke particles each of mass 5 into 10 की पावर -17 किलोग्राम, ठीक है, एंड द kb जो कि आपका कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज 1.38 into 10 की पावर -23 जूल पर मॉलिक्यूल केल्विन, ये क्वेश्चन है। -25। 23 ओके, सो ये हमें क्वेश्चन करना है, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर ऑफ स्मोक पार्टिकल, है ना। तो हमें निकालना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, हमें कैलकुलेट करनी है VRMS। तो हमने देखा था जो आपका VRMS है, VRMS ये कितना होता है, VRMS 3/3 3/3 kBT। 3 kBT/m, हाँ 3 kBT/m। हमने डेरिवेशन किया था 3 kBT/m। तो देखिए kb हमें नोन है, इसका वैल्यू पुट हाँ। करना है, और m हमको गिवन है, m गिवन है 5 into 10 की पावर, M ये रहा 5 into 10⁻17। हाँ अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, कैलकुलेट मास एट रूम टेम्परेचर, भी इसमें ऐड था, वो मैंने ऐड नहीं किया लास्ट में। रूम टेम्परेचर मतलब 25 रूम, कितना, हाँ ठीक है, तो इसमें रूम आप टेम्परेचर हम 25 डिग्री कितना लेते हैं। हाँ, so it's 273 plus I think 32 ओके, 30। ये आपका ऑलमोस्ट 300 केल्विन, तो ये आपका 3 into 1.38 into 10 की पावर -23 into योर ऑलमोस्ट 300 डिवाइड बाय मास जो कि है 5 into 10 की पावर -17, तो ये वैल्यू आपको निकालेंगे, देन यू विल गेट द VRMS वैल्यू, है ना। तो एक ये क्वेश्चन है, एंड नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं दैट बेस्ड ऑन योर, मैं रुकिए जरा, मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ दैट, इस पे तो हमने कर लिए थे क्वेश्चन, या एक और क्वेश्चन है RMS के बेसिक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन है द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, द रूट मीन स्क्वायर
speed of oxygen molecule, speed of oxygen molecule, ठीक है, at a certain temperature, at a certain temperature, capital T is V, is small v. Okay, if the temperature is doubled, if the temperature is doubled, ठीक है, and the oxygen gas temperature is doubled and the oxygen gas dissociates into atomic oxygen, dissociates into atomic oxygen, ठीक है, then you have to find what is the changed RMS speed. What is the change RMS speed, रूट मीन स्क्वायर स्पीड. ठीक है, तो देखें इसको कैसे हाँ, करते हैं. इसमें क्या करेंगे हम सबसे पहले, हमें दिया हुआ है कि हाँ, VRMS हमको, हाँ, फार्मूला हमें पता है, रेडी तो VRMS ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 2 into VRMS of oxygen atom. एटम, हाँ ये है. तो देखिए बेसिकली VRMS जो हमें पता है, जो इनिशियल लेवल पे था 2 √3 kBT/m. तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि योर टेम्परेचर इज गोइंग टू डबल. अब आप जो नेक्स्ट जो आपका VRMS बनेगा, V-RMS, इन केस टेम्परेचर आपका डबल कर दिया गया, यानी 3 मतलब kB 2T हो जाएगा. जगह हम, हाँ बट एक पॉइंट और है जो इसमें, फिर उसके बाद हम मतलब O2 की जगह खाली सिर्फ हम O लेंगे. हाँ, तो इस केस में क्या होगा, अब आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल था, उसमें 2 एटम्स मिलकर बॉन्ड बना के O2 फॉर्म कर रहे थे. अब आपको जब इसको जब आपका ये एटॉमिक जो ऑक्सीजन है, इस केस में इसका जो O हाफ हो जाएगा, बिकॉज इसका मास जो है दैट गोज टू एग्जैक्टली इट्स हाफ. हाँ, क्यों? हाँ, तो हम 1 मोल लेंगे ना. हाँ, तो योर m जो है दैट गोज टू योर m/2, इट्स m/2. जो टोटल मास था आपका, है ना, दैट्स जस्ट हाफ ड्यू टू इट्स एटॉमिक ऑक्सीजन की वजह से. ठीक है. हाँ, तो नाउ अब हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज योर न्यू VRMS, कितना हो गया न्यू VRMS? तो ये देखे, ये क्या हो गया आपका, ये जो m/2 था ये तो ऊपर चला जाएगा. तो मतलब 4 ओल्ड √4. तो √4 को हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 2 ना. तो ये V-RMS is equals to twice of V old RMS. This is the relation you can find. Okay. ठीक है. This is the question based on your एक और क्वेश्चन है इससे भी बेस्ड, हम जरा देख लेते हैं, फिर हम ये VRMS पे हम क्वेश्चन, ये VRMS पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं. और प्रॉब्लम हाँ, at what temperature the RMS velocity of hydrogen molecule, the RMS velocity of hydrogen molecule at what temperature is the RMS velocity of hydrogen molecule equal to that of an oxygen molecule, equal to that of an
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन कि आपका वो टेम्परेचर बताना है जिसपे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है दैट इज इक्वल टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 47 डिग्री सेल्सियस, तो है ना। हाँ एनी आइडिया कैसे करेंगे, है ना। तो हाँ, तो मतलब ये उसका VRMS कैलकुलेट कर लेंगे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, क्योंकि सारा गिवन है। RMS ऑफ H2 मॉलिक्यूल, यही हमें निकालना है, इसी को हाँ, हम मॉलिक्यूल फिर इक्वल टू RMS RMS ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज इक्वल टू RMS ऑफ ये O2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल। हाँ O2 मॉलिक्यूल एट 47 तो डिग्री सेल्सियस। तो इसमें दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, फिर उसके बाद हाँ 3 तो KB भी देखें कैंसिल हो जाएगा। KBT by M M इक्वल टू अंडर रूट 3 KB, T का वैल्यू है यहाँ पे 47 प्लस 273 योर एंड डिवाइडेड बाय योर, इसका जो M है ये H2 का M एंड दिस इज मास ऑफ योर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, सो इट हैज आई थिंक 32 and hydrogen has हाँ, 2 here 2। तो इसमें So हम now यूनिट क्या लेंगे? इसका हेलो हाँ, हेलो हेलो हाँ हेलो। हेलो, आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है। प्लस 1 मिनट रुके, प्लस 273। 270, that's it। So from here we can find the temperature। हाँ आप क्या पूछ रहे थे, आप किसका यूनिट? हाँ, तो ये जो 2 और 32 का यूनिट हम क्या लेंगे? हाँ तो ये 2 एटम्स है ना आपके। हाँ, तो हम यू लेंगे। हाँ ठीक है, मतलब ठीक इसे है, ग्राम में तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। नहीं इसमें ग्राम करने की जरूरत नहीं है। ग्राम में आपको जरूरत पड़ेगी जब आप मॉलिक्यूल्स का फॉर्म लेंगे, उसको केजी या ग्राम में जब चेंज करते हैं, उस पर बेस्ड भी क्वेश्चन देखता हूँ मैं, कोई मिलता है तो आपको देता हूँ। वो उस पे बेस्ड अगर कोई होगा एवोगाड्रो नंबर पे, तो वो तो एक्चुअली अभी इसकी रिक्वायरमेंट चेंज की हमें केमिस्ट्री में ज्यादा पड़ती है, यहाँ पे हम एटॉमिक लेवल पे ज्यादा बात करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स में नहीं। तो ये हो गया, ये कर लेंगे आप इसको, यहाँ से आप टेम्परेचर निकाल लेंगे, ठीक है। जरा देखें निकाल, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट ये हट जाएगा, तो ये KBT भी कट जाएगा, इट्स 3T/2 इज इक्वल टू 3 KB भी हो गया रिमूव, तो इट्स 47 प्लस 7 तो 273, मतलब 320 हो जाएगा। 320 डिवाइडेड बाई 32। ये कुछ ये मतलब मेरे हम ख्याल से 3 आ क्यों रहा है, रखेंगे? 3 से 3 भी कट गया। हाँ। हाँ 3 काट दिया मैंने। तो 3 भी काट दे। 200 आएगा। 200 केल्विन। 200, अच्छा, एक सेकेंड। लेट मी चेक, ये कितना हो गया, ये हो गया ये 4। मतलब 620 कैसे आया? हाँ ये 620 नहीं होगा एक्चुअली, इट्स 320 320 हो एक्चुअली। जाएगा। तो 320 मतलब हाँ ये ऐड किया ना ये। ये 10 हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, 20 हो लग रहा है मुझे। 20। इसका कैलकुलेशन कर ले। हाँ, हो गया। हाँ सो तो 30 ओके, तो ये आपका आंसर कितना रहा, 20। कितना रहा? 20 exactly, so it's 20 Kelvin, so it's your temperature at which your hydrogen molecule is equal to your RMS of your O2 molecule। एक और प्रॉब्लम करते हैं, वो थोड़ा सा ये है इक्वेशन बेस्ड है। हाँ ये एक प्रॉब्लम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इट्स बेस्ड ऑन योर gas equation। So the question is, two isothermally insulated vessels, two isothermally isolated vessels vessels
1 and 2 are filled with air, are filled with air at temperature T1 comma T2 and volumes V1 comma V2, ठीक है, and pressure P1 comma P2, ठीक है. Now next part is problem का है, if the valve joining the two vessel is opened, if the valve if the valve joining the two vessels is opened, ठीक है, what will the temperature inside the vessel at equilibrium? What will be the temperature ठीक है, what will be the temperature inside the vessel at equilibrium? तो वो ये हो जाएगा कि P1 is equal to P2 is equal to ये P total. तो P total का फॉर्मूला हो जाएगा P total is equal to nRT by हाँ, कुछ ऐसा ही हमें करना है. तो देखिए आपको सिंपल एक फॉर्म जो है वॉल्यूम का, दोनों का वॉल्यूम ऐड हो जाएगा P टोटल में. देखिए एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखिए हाँ ये आप सही तो देखो आपका इनिशियली क्या थे, जो आपके विसल्स थे ये आपका टेम्परेचर पे रखे थे P1 P2 T1 T2 है ना, एक विसल आपका है. हाँ. ये आपका ये था P1 V1 T1 और एक अनदर है जो कि आपका, मैंने इनको पास में बनाना था, मैंने इनको अलग बना दिया, कोई बात नहीं. P2 V2 एंड T2, ठीक है. जब आप इनको ज्वाइन कर देंगे, कंबाइंड फॉर्म जब इनका आ जाएगा, तो कंबाइंड फॉर्म में देखें प्रेशर इनका, आपका जो फाइनल प्रेशर है दैट यू गेट सेम, प्रेशर आपका सेम हो जाएगा, है ना. यानी फाइनल प्रेशर मान लो मैं P ले लेता हूँ, फाइनल प्रेशर P एंड फाइनल टेम्परेचर भी आपका सेम हो जाएगा, बिकॉज प्रेशर एंड जो टेम्परेचर है दे आर योर इंट्रिंसिक, द एक्सट्रिंसिक इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या हो जाएगा, जो फाइनल वॉल्यूम जो होगा, मान लो फाइनल जो वेरिएबल्स हैं वो हम ले लेते हैं प्रेशर P, टेम्परेचर T एंड वॉल्यूम कितना हो गया V1 प्लस V2, ये हमारा फाइनल वेरिएबल्स हो गया, ठीक है. तो नाउ जो इक्वेशन आपका इनिशियल लेवल पे जो एक जो इक्वेशन है आपका, वो हमें पता है दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT. n का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज PV अपॉन RT. तो इनिशियली आपके जो इसमें नंबर ऑफ योर जो मॉलिक्यूल्स हैं n इज इक्वल्स टू दैट इज योर P1 V1 अपॉन RT1, ये मैं N1 ले लेता हूँ, ठीक है जी. एंड N2 में कितने हो गए, दैट्स ये पार्ट जो N2 का है, ये हो गए आपके P2 V2 अपॉन RT2, ठीक है. ठीक. सो अब आपने इन दोनों को जब आपने विसल को ओपन किया, दे गेट मिक्स्ड. सो इन दिस केस योर फाइनल जो आपका n हो गया दैट इज N1 प्लस N2, सिंपल, ठीक है. So what is N1 plus N2? It is P1 V1 plus P2 V2 by R. हाँ exactly, RT2, ठीक है. N1 मैंने अलग किया, N2 को अलग किया, और N कितना हो गया फाइनली N, यानी ये N हो गया दैट इज N इक्वल टू P इंटू V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई RT, ठीक है. इज इट क्लियर? हाँ, यस. ये हमें कितना मिलेगा, दैट इज P1 V1 RT2 प्लस P2 V2
आर को तो हम कैंसिल कर सकते हैं, मैं आप बाद में कर दूंगा। हाँ। तो ये एक्चुअली बेटर रहेगा कि मैं इसको कैंसिल अब यहाँ से ही कर दें, तो एक कैलकुलेशन थोड़ी सी शॉर्ट है। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए। मैं आर को, ये दोनों इक्वल हैं, तो ये आर यहाँ से आर कैंसिल कर दिए, ठीक है है ना। नाउ अवर इक्वेशन इज P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 डिवाइड बाई T1 इंटू T2। हमें निकालना क्या है, T निकालना है, ठीक है। ओके, एंड वी कैन आल्सो राइट दिस इक्वेशन एज PV1 प्लस V2 इक्वल टू, जो देखिए PV1 प्लस PV2, ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो आपका सॉरी P1 V1 इंटू P2, तो देखिए इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम जो इनिशियल था आपका, प्रेशर इंटू वॉल्यूम प्लस अनदर प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम अलग अलग हैं, बट इनका जो मल्टीप्लीकेशन है यानी P इंटू V1 प्लस V2 और P1 V1 और इनका जो मल्टीप्ली दैट इज कांस्टेंट, यानी इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम प्लस जो अनदर विसल में प्रेशर है इनटू वॉल्यूम, जब उनको मिक्स करेंगे देखो वॉल्यूम तो चेंज हो जाएगा, बट प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों स्टेट में कांस्टेंट रहेगा। ये तो बॉयल्स लॉ है, हाँ है ना, ये तो बॉयल्स लॉ है आपका कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो है आपका जो ज्यादा पीवी जो है दैट योर कांस्टेंट आपका, जब विसल से पहले और इस मिक्स करने के बाद दैट इज योर कांस्टेंट। ये क्वांटिटी जो है ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। ये चाहे आप इसको और आगे बढ़ा लें, V3 भी कर लें तो भी ये कांस्टेंट रहेगा। इज इट क्लियर? दिस इज अवर बॉयल्स लॉ। नाउ पुट दिस वैल्यू इनटू योर इक्वेशन। अब हम इसको वापस से इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो ये हमें मिल गया या तो दिस इज अवर, इसको पुट करने से पहले जरा इसको रिवर्स कर लेते हैं हम। तो ये हो गया T हमें एक्चुअल में निकालना तो T है इन द टर्म्स ऑफ T1 into T2 डिवाइड बाई P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। ठीक है, अब इसमें जरा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे। सो दैट विल बी योर फाइनल टेम्परेचर। तो T इज इक्वल्स टू T1 into T2 into P V1 plus V2 डिवाइड बाई P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। अभी हम P को इसलिए चेंज कर रहे हैं बिकॉज हम ये चाहते हैं जो गिवन फॉर्म है P1 V1 सारा इनिशियल फॉर्म में आ जाए, सारे वेरिएबल T1 into T2 एंड ब्रैकेट P1 V1 प्लस P2 V2। ये अच्छा क्वेश्चन है, इट्स इंपॉर्टेंट। P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस, ये मिक्सचर हो गया आपका। सो दैट्स द फाइनल टेम्परेचर, दिस इज योर फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, हाँ ये लिख लिया आपने कि मुझे ऊपर करना है? हाँ एक सेकंड, ये लास्ट लाइन लिख रहा हूँ। हाँ लिख लें इसको, है ना। फिर इसमें न्यूमेरिकल तो और भी बहुत सारे हैं, बट अभी मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रोकूंगा। पहले मैं आपका ये ऑसिलेशंस पे जरा फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी कल है इसमें हम ऑसिलेशंस का थोड़ा कवर करने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऑसिलेशंस में, है ना। इसमें मेन थिंग है कि उस पर बेस्ड जो सिस्टम है उनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और डैम्ड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी तो इजी है। डैम्ड ऑसिलेशंस में थोड़ा टाइम लगेगा, हाँ, उसमें थोड़ा सा इसके बाद वाला चैप्टर वो हम वेव्स। हाँ वेव्स वाला हमने क्लास में ही पढ़ा था, मतलब ऑफलाइन। अच्छा अच्छा, ऑफलाइन कब, स्टार्टिंग में? नहीं, ये अभी हमारे स्कूल खुल गए। अच्छा अच्छा, खुल गए, ठीक है। फिर तो और बेटर और जल्दी कवर हो जाएगा। उसके आपके जो डाउट्स हाँ होंगे तो आप पूछ लेंगे, है ना। सुपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और वो हार्मोनिक्स, हाँ हाँ। फर्स्ट हार्मोनिक और